ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमः सर्वेभ्यः। पिछली कक्षा में हमने समास विषयक कुछ पढ़ा। समास पढ़ते समय समास शब्द की व्याख्या क्या है, तो तत्र समसनम समासः ऐसी उसकी व्याख्या देखी। और एक ऐसा श्लोक देखा जिसमें हमने देखा कि विभक्तिर लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते पदानां चैकपद्यं च समासस्सोभिधीयते, ऐसी उसकी व्याख्या देखी। ठीक है, तो विभक्तिर लुप्यते यत्र समास होते हुए क्या होता है, विभक्ति पदानाम लोपः भवति। विभक्ति पद जो भी है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। लेट मी शेयर द स्क्रीन नाउ। ये सबको दिखाई दे रहा है, स्लाइड दिख रही है ना? यस। तो समास नाम किम एक्सेट्रा एक्सेट्रा वी हैड सीन। विभक्तिर्लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते पदानां चैकपद्यं च समासस्सोभिधीयते। नाम विभक्ति जो है, विभक्ति प्रत्यय जो है, समास होते समय दो शब्द जब एकत्रित आते हैं तब उन विभक्ति प्रत्ययों का लोप हो जाता है। लेकिन यद्यपि विभक्ति प्रत्ययों का लोप हुआ तो भी उसका जो अर्थ है, पर्टिकुलर विभक्ति का जो अर्थ है जिसका लोप हो चुका है, अर्थ तो वैसा का वैसा ही रहेगा। इवन दो द विभक्ति प्रत्ययस आर ड्रॉप्ड, स्टिल मीनिंग विल रिमेन एज इट इज। प्लस padanam ekapadyam cha, so if there are two padas, those after making samasa it will become one pada. That is the definition of samasa, that is called samasa. For example, sitayaha patihi, so basically sitayaha is one word, patihi is another word. If you want to make a samasa out of sitayaha pati, the shashtyanta form, the shashtyanta vibhakti pratyaya will be dropped. It will remain Sita. And Patihi, it was in Prathamanta, that Prathamanta form also is going to drop. Only Pati Shabda will remain Sita Pati. When it becomes compound word, then again we need to add Subanta Pratyayas and then we can decline that particular Samasta Pada. Sita Patihi, Sita Pati, Sita Patayha, like that. Okay. So this is the basic idea of samasa. Then we had seen some rules like samasa happens between two words and not with kriya pada. But sometimes you can see exceptions of also regarding the samasa, in the sense regarding verb. Samasa yugapad, yugapad in the sense simultaneously. Dvayoho subantayoho bhavati. Means what? Samasa happens between two subanta, not tiganta. And sometimes bahunam padanam api samasaha bhavati. Sometimes even many padas can come together and it will have the compound form, samasta form. For example, harishcha, harashcha, gurushcha, harihara guravaha. So many padas also can come together, but basically two padas come together and it becomes one pada. This idea we had already seen. To make samasa, समास कैन हैपन बिटवीन टू पदस, दो पदों के बीच में समास होगा, लेकिन वो पद समर्थ होने चाहिए, दोनों के दोनों पद सामर्थ्य युक्त होने चाहिए, दोनों के बीच में अन्वय होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, राज्ञः पुत्रः, if there is a connection between raja and putra, then samasa can happen. But
if you are finding a or founding a sentence or forming a sentence saying that भवती दर्शनम राज्ञः, राजा का दर्शन होते ही पुत्रः चोरस्य धावति, अभी ये सेंटेंस बनाते समय आपने राज्ञः इस शब्द का अन्वय दर्शनम के साथ किया। राज्ञः दर्शनम, राजा का दर्शन, तो राज्ञः ये पद उसमें अभी दर्शन शब्द के साथ यदि उसका अन्वय है तो वह उन दोनों में समास हो सकता है, लेकिन राज्ञः पुत्र इन दोनों में यह समास नहीं होगा। यहाँ ये थोड़ा मैंने दूसरा लैपटॉप यूज कर रहा हूँ तो ये सारा चेंज, उसका फॉर्मेट चेंज हो गया, ये एरो एक्चुअली यहाँ होने चाहिए। ओके, एनीवे, so basically there is no anvaya between rajnyah and putrah, because rajnyah pada is connected with darshana and putrah is connected with chorah. So there in between rajnyah and putrah there is no samarthata, there is no samarthya. Samasa cannot happen between rajnyah putra. In this case samasa will not happen. Then how to identify whether that is avyay bhava, tatpurusha, bahuri, etc. So we have to identify what is the pradhana पद, पूर्व पद प्रधान है या उत्तर पद प्रधान है। तो उसके लिए हमने देखा था कि हमें क्या करना है, क्रियापद यूज करना है। जो भी समस्त पद है उसके साथ क्रियापद रखने का प्रयास करिएगा। क्रियापद से पता चलता है कि अरे बाबा ये अभी इसमें पूर्व पद की प्रधानता दिख रही या उत्तर पद की प्रधानता दिख रही, उसके अनुसार यू विल आइडेंटिफाई इफ दैट इज पूर्व पद प्रधान then that is avyay bhava. If it is uttar pada pradhana, then tatpurusha. If it is anya pada pradhana, then it is bahuri. If it is ubhaya pada pradhana, then that is dvandva. This is one method. By adding kriya pada and by guessing whether purva pada is pradhana or uttar pada pradhana, you will identify the samasa. Another thing, you can even add some quality, in the sense some adjective you can add, like rajadutah gacchati, kidrushah rajadutah gacchati, sundarah rajadutah gacchati. So basically a beautiful or handsome Rajapurusha goes. Which kind of Rajapurusha goes? If you answer such questions, you will get the Kidrushah Rajapurusha, Kidrushah. If you particularly ask Kidrushah, then you will get the answer. Kah Sundarah, Raja Sundarah, Ut Purushah Sundarah. Then you will get the answer Purushah, not Raja. Raja Sambandhi Purushah Gacchati इति अर्थ। ठीक है, उसके मुख्य 5 हमने प्रकार देखे। केवल समझ पहला प्रकार, दूसरा प्रकार होता है अव्यय भाव, तीसरा तत्पुरुष, चौथा बहुव्रीहि और 5वां द्वंद्व। ऐसा उसका डिवाइडेशन करते हैं। नहीं तो केवल समास की गणना ज्यादातर होते नहीं, उसके बहुत रेयर एग्जांपल्स आते हैं। तो बेसिकली अव्यय भाव पहला, तत्पुरुष दूसरा, और तत्पुरुष के भेद भी काउंट करेंगे तो कर्मधारय तीसरा, द्विगु चौथा, बहुव्रीहि 5वां और द्वंद्व समास छठा। ऐसे 6 समास के प्रभेद है। ततः these are some अव्यय भाव is divided into 33, but mostly useful are 12 only. Tatpurusha there are many prakaras, bahuvrihi there are 2 main prakaras, and then dvandva, iterator and samahara, those main samasas are there. So pradhanyata etc. This format you have to remember. This is main sentences I have put here, like प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्यय भाव। अव्यय भाव को कैसा पहचानना है, तो मेन ये पद यू कैन अंडरलाइन। पूर्व पदार्थ प्रधान, जिस समास में पूर्व पद प्रधान रहता है अथवा पूर्व पद के पद का जो अर्थ है, इफ दैट इज प्रिडोमिनेंट, इफ इट इज दैट इंपॉर्टेंट, देन दैट इज कॉल्ड अव्यय भाव। फॉर एग्जाम्पल यथाशक्ति, इस समास में आपको पहला वाला पद हमेशा अव्यय मिलेगा। तो अव्यय भाव पहचानना बहुत सिंपल होता है। जिसके पूर्व पद में अव्यय है वो अव्यय भाव है, सिंपल। दूसरा, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता है, दैट इज कॉल्ड तत्पुरुष। सो बेसिकली इफ सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट इज इंपॉर्टेंट, then that can be called as तत्पुरुष समास। फॉर एग्जाम्पल भूतबलिः अथवा राजपुरुषः
अथवा राष्ट्रध्वजः अथवा सीतापति, अहम सीतापतिम नमामि, ऐसा यदि वाक्य बोल रहा हूं मैं, तो उसका अर्थ क्या होगा? मैं सीता को नमन नहीं कर रहा हूं, मैं उनके पति को, मतलब उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता है। किसको नमन कर रहा हूं? पति को मतलब राम जी को मैं नमस्कार कर रहा हूं। ठीक है। तीसरा, कर्मधारय समास। कर्मधारय बहुत ही सिंपल है, जिसमें दो चीजें याद रखनी है। इस समास में हमेशा आपको कोई कुछ ना कुछ विशेषण मिलेगा, कुछ ना कुछ विशेष्य पद मिलेगा। जैसे कि मेघ श्याम, श्याम कृष्णवर्णीय, मेघ मतलब क्लाउड्स, मतलब मेघ इव श्याम, मेघ श्याम, अथवा नीलकमलम, यहाँ विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का भी कर्मधारय होता है, जो मेघ श्याम मैंने उदाहरण दिया। अथवा विशेषण विशेष्य का समास जहां मिलता है, जैसे कि नीलकमलम, स्थूल पुरुषः, वीर पुरुषः, वगैरह वगैरह, जिसमें विशेषण प्लस विशेष्य आपको दिखाई देवे, उसको कर्मधारय बोलते हैं। संख्या पूर्व द्विगुहु, मतलब जिस समास में आपको पूर्व पद में संख्या दिखाई दे और जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता है, उस समास को हम बोलते हैं द्विगु समास। दो चीजें याद रखनी है। पहले पद में संख्यावाचक कोई शब्द होना चाहिए, लेकिन दूसरा पद प्रधान होना चाहिए। ओके, तो उसको हम बोलेंगे संख्या पूर्वो द्विगुहु, द्विगु समास उसको कहा जाएगा। उसके बाद आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का लक्षण क्या है? अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि, जिस समास में अन्य पद की प्रधानता है उसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। और लास्ट में हमने देखा उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व, जिसमें दोनों भी पदों की प्रधानता है, वो है द्वंद्व समास। तो यहां तक हमने देखा था, इनकी छोटी छोटी व्याख्याएं देखी थी। अभी पहला प्रकार जो है द्वंद्व समास, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसकी व्याख्याएं ऐसे की कि उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व, so basically the both component अथवा both words will be equal important. For example, अहम माता पितरौ नमामि, अहम माता पितरौ नमामि, माता पितरौ ऐसा शब्द मैंने यूज किया। तो बेसिकली when I say I bow down to parents, in the sense I bow down to my mother also, I bow down to my father also, equally same, both will have same important. ऐसा नहीं कि मैं माता को नमस्कार कम करता हूं, पिता को ज्यादा करता हूं, नहीं, जितना इंपॉर्टेंस माता शब्द को उतना ही पिता को भी। कृष्णश्च अर्जुनश्च कृष्णार्जुनौ, कृष्णार्जुनौ, ऐसा समस्त पद इसका बनता है। अभी इसके रिलेटेड हमने दो प्रकार देखे, द्वंद्व समास के दो प्रकार देखे, जिसमें पहला प्रकार होता है इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, और दूसरा होता है समाहार द्वंद्व। अभी उसके पहले जब हम इतरेतर में प्रवेश करते हैं, कुछ चीजें याद रखने जैसी है। कौन से? इतरेतर समास में जो न्यून स्वर युक्त जो पद होता है, जिसमें कम से कम स्वर हो, वो वाला पद हमेशा पहले रखा जाता है। ये एक नियम। दूसरा नियम, इतरेतर समास में, पर्टिकुलरली इतरेतर में, ये समास हमेशा द्विवचन में होगा, नहीं तो बहुवचन में होगा। तीसरा प्रकार, अभी इसमें लिंग कैसे डिसाइड करेंगे हम? तो उत्तर पद में जो शब्द आता है, उस शब्द के अनुसार हम लिंग डिसाइड करेंगे। यदि पूर्व पद में राम शब्द है, दूसरे पद में सीता शब्द है, तो हम बनाएंगे राम सीते। यदि उल्टा है, यदि राम शब्द पहला है, सॉरी, यदि सीता शब्द पहला है, राम शब्द बाद में है, तो वहां कैसे बनेगा? सीता रामऊ, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो उत्तर पद के अनुसार आपको लिंग वचन वगैरह डिसाइड करना है, वो तीसरा। चौथा पॉइंट, विग्रहे प्रतिपदम प्रथमा विभक्ति ही योजनीय। जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं, अलग अलग करते हैं, तब इस इतरेतर द्वंद्व में हमेशा प्रथमा विभक्ति वहां रखनी है और उसके साथ साथ च जोड़ना है। जैसे कि रामश्च, कृष्णश्च, सीता च,
रमाच वगैरह वगैरह। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद समस्त पदम वगैरह, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे ये उदाहरण भी हमने कल देखे थे, राम लक्ष्मणौ रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणौ, रमा च वाणी च रमा वाण्यौ, सूर्यश्च चंद्रमाश्च सूर्य चंद्रमसौ वगैरह वगैरह। इसका अभ्यास हमने किया। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट नियम, अभी पूर्व पद में कौन सा पद रखा जाए, पूर्व पद कौन सा होना चाहिए, उसके रिलेटेड हमने कुछ नियम यहाँ रखे थे। जैसे कि ह्रस्व इकारांत शब्द, ह्रस्व उकारांत शब्द ये हमेशा पहले होनी चाहिए। तो बेसिकली वेन एवर वी आर लुकिंग आफ्टर द्वंद्व समास, इफ you are finding two padas and both padas have same vowels, दोनों पदों में समान स्वर है, तो ये नियम एप्लीकेबल होंगे। नहीं तो सामान्य नियम क्या है, जो लघु शब्द, लघु इन द सेंस दो न्यून स्वरों से युक्त पद है, वो हमेशा पहले रहेगा। वो वाला नियम याद रखना है। इफ यू आर फाइंडिंग बोथ पद, बोथ विल, इफ बोथ पदस आर हैविंग सेम यू नो vowels, then this first rule we need to apply। कौन सा, यदि दोनों पदों में से कौन सा शब्द यदि आपको ह्रस्व इकारांत मिल रहा है या ह्रस्व उकारांत मिल रहा है, तो यू विल अप्लाई दैट ह्रस्व इकारांत शब्द, यू विल पुट दैट ह्रस्व इकारांत या उकारांत शब्द इन फर्स्ट। बेसिकली हरिश्च हरश्च, इट विल बिकम हरि हरऊ, हरि शब्द को आप पहले रखेंगे। वैसे ही मधु च घृतंच घृतम च, इसमें दोनों में सेम सेम वॉवल है, दो दो वॉवल है, स्वर है। अभी इन दोनों में से पहला पद घृतम रखा तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्योंकि मधु शब्द इज एंडिंग विथ उ, ह्रस्व उ। तो नियम क्या बताता है कि ह्रस्व शब्द पहले रखा जाएगा। तो इस रूल के आधार पे हम करेंगे मधुघृते। दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्पस्वर विशिष्ट शब्द पूर्वम प्रयुज्यते। हाँ, जैसे कि जिसमें कम से कम स्वर है, ऐसा पद हमेशा पहले आएगा। फॉर एग्जाम्पल शिवश्च केशवश्च शिव केशवौ। अभी शिव पद में केवल दो स्वर है, केशव शब्द में तीन स्वर है, तो बेसिकली शिव पद विल बी पुट फर्स्ट। राम लक्ष्मणौ, राम शब्द में दो ही स्वर है, लक्ष्मण में तीन है, तो बेसिकली राम शब्द पहले आएगा। लेकिन ये केस थोड़ा सा आप विचार करते समय, ज्येष्ठ भ्राता है या श्रेष्ठ व्यक्ति है, वहां वहां तो ये नियम, अभी अगले वाले चौथा पांचवा नियम अपवाद बन जाता है। ठीक है। तीसरा एक नियम है, यदि दो पद हैं, दोनों में समान स्वर आ रहे हैं, तो एक आपने व्यवस्था बनाई कि ह्रस्व इकारांत जो शब्द है, ह्रस्व उकारांत जो शब्द है वो पहला रखना चाहिए, ऐसा आपने नियम बताया। लेकिन उसका भी अपवाद करके एक नियम बनाते हैं कि स्वरादि यदि शब्द है, और यदि वो स्वरादि शब्द होते हुए जो अकारांत है, जैसे कि इंद्र शब्द अग्नि शब्द, दोनों भी स्वरादि शब्द है, दोनों का बेसिकली फर्स्ट लेटर स्वर है, ई स्वर है, अ स्वर है ना। लेकिन दोनों स्वरादि होते हुए भी यदि उन दोनों में से कोई अकारांत, मतलब जिसके अंत में अ है, ऐसा जो भी मिल रहा है, उसको हम पहले रखेंगे। तो बेसिकली इंद्रश्च अग्निश्च, दोनों स्वरादि होते हुए हमें कौन सा ढूंढना है, अकारांत शब्द ढूंढना है। तो बेसिकली इंद्र इज अकारांत वर्ड, दैट्स हाउ वी कैन नॉट पुट अग्नि शब्द फर्स्ट इवन दो इट इज एंडिंग विथ ई, वी हैव टू से इंद्राग्नि, not Agnendra. It is not happen. It will not happen. Agnendra is not going to happen. Okay. Yes. Similarly, Indrashcha Chandrashcha Indrachandrau. हाँ, ऐसा। ठीक है। भ्रातृषु ज्येष्ठ भ्राता पूर्वम प्रयुज्यते। यदि क्रम से अभी देखेंगे, वो न्यून स्वर वाला हो, ह्रस्व इकारांत उकारांत यहाँ मैटर नहीं करता। यू हैव टू अप्लाई द ज्येष्ठ भ्राता फर्स्ट, ज्येष्ठ भ्राता या ज्येष्ठ भगिनी, दैट विल बी कमिंग फर्स्ट। और लास्ट रूल है श्रेष्ठ। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तुओं में, किसी जातियों में जो श्रेष्ठ है उसको हम पहले रखेंगे, चाहे उसमें शब्द ज्यादा हो कम हो, इट डजेंट मैटर। बेसिकली एग्जांपल मैं देता हूं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र,
अभी बेसिकली वैश्य या शूद्र ये शब्द पहले होने चाहिए, पहले सामान्य रूल से, लेकिन ये क्या बोलते हैं, श्रेष्ठ क्रम से यदि आप यूज करेंगे तो ब्राह्मण पहले आएगा, उसके बाद क्षत्रिय आएगा, बाद में वैश्य और बाद में शूद्र। तो क्रम से हम रखेंगे, श्रेष्ठता के क्रम से। ये नियम हमने देखे थे। ठीक है, अभी इसके बाद समाहार द्वंद्व, इसके बारे में थोड़ा नियम है, बहुत सिंपल है ये भी। बेसिकली इसमें आपको दो तीन चीजें याद रखनी है, मोटी मोटी चीजें याद रखनी है। समाहार द्वंद्वे नित्यम एक वचनम तथा नपुंसकत्वम च भवति। मतलब समाहार द्वंद्व में हमेशा एक वचन रहेगा, और दूसरी बात ये हमेशा नपुंसक लिंग में रहेगा। बहुत सिंपल है। whenever you want to identify if you are finding ekavachanam and if it is in napusaklingam, and if you are finding words which are put into group, for example पानी, पानी ऐसा यदि शब्द आता है संस्कृत में, उसका अर्थ होता है दो हाथ। पादौ ऐसा शब्द यदि आपको मिल रहा है, उसका अर्थ होता है दो पैर। तो बेसिकली पानी च पादौ च, इसका समाहार यदि हम करते हैं, समाहार करते हुए शब्द का विभक्ति प्रत्ययों का लोप हो जाएगा, मूल प्रातिपदिक अवशिष्ट रहेगा पानी पाद, पानी पाद ऐसा बनेगा। पानी पाद बनाने के बाद उसमें हमेशा आपको नपुंसक लिंगत्व लाना है और एक वचनम लाना है, तो क्या बन जाएगा, पानी पादम, वनम वने वनानि, वैसे पानी पादम। वैसे ही भेर्यश्च पटहाश्च एतेषां समाहारः भेरीपटहम। भेर्यः, भेरी एक वाद्य विशेष है, बहुत सारे वाद्य है भेरी नाम से। पटहाह ऐसे बहुत सारे वाद्य है, उनका यदि हम समाहार करते हैं, समाहार शब्द का अर्थ होता है समूह, समूह, ग्रुप। So basically the group of bheri and group of patah are put together and made another group, it become bheri pataham, ऐसा बन जाता है। ठीक है, सिमिलरली अहयश्च नकुलाश्च, अहि, अहि मतलब सर्प, जहां जहां जात वैर है उनमें भी ये समाहार द्वंद्व समास होता है। जैसे कि अहि शब्द है जिसका अर्थ होता है सर्प, नकुल शब्द जिसका अर्थ होता है मूंगूस। तो बेसिकली the group of ahids in the sense snakes and the group of nakulas are put together, it's called ahinakulam। नपुंसकत्वम होगा, एकवचनत्वम होगा। सुखम च दुखम च तयोः समाहारः, सुख है दुख है उनका समाहार कर दिया, उनका ग्रुप कर दिया, और समाहार करते समय एक वचन हम यूज करते हैं, नपुंसकत्वम बना देते हैं, सुख दुखम, हाँ ऐसा बनाएंगे, सुखम च दुखम च सुख दुखम, ऐसा बन जाएगा, सुखानि च दुखानि च सुख दुखम, ऐसा बनेगा। सिमिलरली पुत्राश्च पौत्राश्च पुत्र पौत्रम, काकश्च उलुकश्च काकोलुकम, दासी च दासम च दासी दासम। इतना क्लियर? अभी आपको 3 पॉइंट 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। जहां जहां जात वैर है, जात वैर मतलब जन्मजात शत्रुत्व जहां आपको दिखाई दे रहा है दो वस्तुओं के बीच में, दो प्राणियों के बीच में, तो यू हैव टू डू समाहार द्वंद्व ओनली। व्हाट इज द एग्जांपल? मूषकश्च मार्जारश्च, मूषक in the sense rat and marjara means cat. Rat and cat, they have enmity from their birth. So basically if there is an enmity between two animals, you can use samahara dvandva to indicate the their vairam. मूषकश्च मार्जारश्च अथवा मार्जारी च एतयोः समाहारः is called मूषक मार्जारम, मूषक मार्जारम। हमेशा यहाँ क्या करना है आपको? समाहार करना है। यहाँ आप एक इतरेतर करने का प्रयास मत करिएगा। सिमिलरली इफ यू आर फाइंडिंग शरीरावयव, ये दूसरा पॉइंट ध्यान में रखिएगा। शरीरावयव, इफ यू आर इंडिकेटिंग द पार्ट्स ऑफ बॉडी, then you have to do samahara dvandva. For example, hastau, dvau hastau, dvau padau, their group, tesham samaharah, you have to make hastapadam, hastapadam। Did you get? हस्तौ च दो हाथ है, उनका ग्रुप, दो हाथों का ग्रुप, दो पैरों का ग्रुप, और उनका ग्रुप बनाना है तो बन जाएगा हस्तपादम। ठीक है, ये हो गया दूसरा प्रकार।
तीसरा नित्य साहचर्यम, जिन दो वस्तुओं का नित्य साहचर्य है उनका भी कौन सा समास होगा? समाहार होगा। उदाहरण किम? तिलंच, ओके तिल बहुवचन यूज करते हैं। तिलाश्च गुडश्च, तिल मतलब सिसिमी सीड्स, तीळ म्हणतात आपण मराठीत त्याला तिळ म्हणतो, तीळ, तिळाचे लाडू। हा, तिलाश्च गुडश्च एतेषां समाहारः, इट विल बिकम तिलगुडम। दुग्ध च शर्करा च दुग्ध शर्करम। वैसे ही अगला वाला एक चौथा पॉइंट नोट करिएगा। यदि सूक्ष्म जीव हम बता रहे हैं, उनका समूह यदि बता रहे हैं, तो उनके समूह अर्थ में भी समाहार द्वंद्व होगा। उदाहरण क्या है? युकाच लिक्षाश्च एतासां समाहारः युकालिक्षाः। ठीक है, अभी युकालिक्षा इनके हिंदी में अर्थ यदि आप किसी को पता है तो यू कैन एक्सप्लेन। यू का मतलब जो बालों में इनकी उत्पत्ति होती है ना, एक जीव विशेष है, सूक्ष्म जीव है। ये सूक्ष्म जीव जहां जब जब बताने हैं तब तब हमें समाहार द्वंद्व यूज करना होता है। दिस टाइप वी हैव ऑलरेडी सीन। इफ देयर इज अ नित्य साहचर्यम, अनित्य साहचर्यता यदि है तो वह हम हमेशा समाहार द्वंद्व करते हैं। हरिद्रा, हरिद्रा मतलब हल्दी, कुमकुमम मतलब कुमकुम, उन दोनों का हमेशा जब जब हम हल्दी शब्द बोलते हैं कुमकुम शब्द उनके साथ आ ही जाता है। तो उनका नित्य साहचर्य होने के कारण वह इतरेतर समास नहीं करेंगे, यहाँ समाहार द्वंद्व की अपेक्षा रहेगी। ये देखा, ठीक है। अभी कुछ उदाहरण है। वत्स पाणिपादं प्रक्षाल्य आगच्छ, इसका अर्थ आपको पता है? जिसको पता है उनको इसका अर्थ बताना है। और जो मैंने हाईलाइटेड किया है उस पाद का, उस समस्त पद का विग्रह बोलना है। यदि कर पाएंगे तो बढ़िया होगा। थोड़ी स्लाइड के ऊपर चर्चा करके मैं अगले समास पे जाना चाहता हूँ। पहला बताओ सर। हस्त पाणिपाद है, वही आएगा ना? वत्स, अभी हाँ आपने समझाया वही आएगा ना? हस्तौच पादौच। हाँ, हस्तौ च पादौ, पाणी च पादौ च येषां समाहारः पाणी। पाणिपादम। ओके वेरी सर। गुड, वेरी नाइस। I can put even iterator समास in between, huh? You can identify by looking at pada. मानवः क्रोधोद्वेग भयैः विमुक्तः भवेत्। अभी यहाँ क्या समास हो सकता है? कौन सा समास हो सकता है? तो उद्वेग और भय। इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर होगा, कैसे बनेगा? क्रोधश्च क्रोधश्च उद्वेगश्च भयश्च। भयम च, भयम शब्द भयं च, नपुंसकलिंग है। आम आम भयं च। उसका समास यदि कर रहे हो तो समास करते समय हमेशा प्रथमा विभक्ति लाएंगे। क्रोधश्च उद्वेगश्च भयम च। अभी इसमें आप वचन कौन सा लाएंगे? इतरेतर है। इतरेतर में आप कौन सा वचन लाएंगे? आइदर द्विवचन नहीं तो बहुवचन। जहां बहुवचन कहाँ होगा? जहां तीन से अधिक शब्द है वहां ऑब्वियस है बहुवचन आएगा। तो यहाँ कैसे हो जाएगा? क्रोधोद्वेग भयानि, क्रोधोद्वय भयानि, ऐसा बन जाएगा, क्रोधोद्वेग भयानि। अभी उसका वाक्य में प्रयोग यदि करना है और आपको तृतीय विभक्ति बहुवचन यूज करना है तो यू विल से द मानवः क्रोधोद्वेग भयैः, अथवा यू कैन इवन यूज पंचमी, क्रोधोद्वेग भयेभ्यः विमुक्तः भवेत्। ही शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम क्रोध उद्वेग भय। अभी ये इतरेतर है, इंडिविजुअली he have to give up क्रोध, he have to give up उद्वेग, he has to give up भयम, इंडिविजुअली। एक साथ डाल मतलब वो छोड़ रहा है तो अच्छा ही है, लेकिन एक साथ जाने जैसी चीज नहीं है, इसलिए इतरेतर है वहां। ठीक है, अगला भीमार्जुनौ उभौ अपि शूरौ एव। यहाँ इतरेतर। इतरेतर होगा। भीमश्च अर्जुनश्च, भीमार्जुनौ, जुनौ। करेक्ट। गुरवे फलपुष्पं समर्पयामः, यहाँ क्या होगा? समाहार। समाहार। समाहार होगा, क्योंकि फलानि च पुष्पाणि तेषां पुष्पाणि च। समाहारः, एतेषां समाहारः
फल पुष्पम, नपुंसकत्वम यदि दिख रहा है तो इट इज ऑब्वियस नपुंसकत्वम एकवचनत्वम यू आर फाइंडिंग, देन इट इज वेरी मच यू नो। यस, नेक्स्ट, धर्मार्थ काम मोक्षाः पुरुषार्थाः। इतर दो। ये कह रहे थे अविनाश जी, जी हेलो, कि बोलिए, ये बोलिए। जो यहाँ पर अभी जो हम लोग कर रहे थे पत्रम च पुष्पम च, तो यहाँ पर दो से यदि ज्यादा हो जाता है, फल भी जोड़ देते हैं, तो पत्र पुष्प फलानी न हो जाएगा। फलम, यदि आप पत्र पुष्प फल इनका समाहार कर रहे हो तो हमेशा नपुंसकत्वम आएगा, एकवचनत्वम आएगा। तो मेनी, देयर माइट बी मेनी फ्लावर्स, देयर माइट बी मेनी फल फ्रूट्स, देयर माइट बी मेनी पत्र पुष्प फलम। हाँ, समाहार करेंगे तो आएगा, लेकिन इतरेतर में तो फलानी आ जाएगा। हाँ, वहां फलानी आएगा। यदि आपको अलग अलग विवक्षा है, अलग अलग जी। बताने की विवक्षा है, दैट टाइम यू विल से गुरवे फल पुष्प, क्या शब्द आपने तीसरा भी कुछ यूज किया ना, हाँ, पत्र पत्रम पुष्प च फलम। पुष्पम च फलम च। हाँ, पत्रं च पुष्पं च फलं च पत्र पुष्प फलानि, हाँ, वहां तब पर आ जाएगा इतरेतर। वहां इतरेतर हो सकता है। जी जी। जी, ठीक है। मैथिली जी, यू हैड अ क्वेश्चन राइट? नमस्कार सर। हाँ। फल पुष्पम जो आया है वो किस रूल से उसका समाहार हो गया सर? उनका नित्य साहचर्य होता है, फलम च पुष्पम च, फल आया पुष्प आया, दोनों का साहचर्य रहता है। धन्यवाद ओके, सर। हाँ, यहाँ समास करिएगा, चैत्रश्च वैशाखश्च। चैत्र वैशाख हऊ। हाँ, गंगा च यमुना च। गंगा यमुने। गंगा यमुने। यमुनऊ बनेगा क्या? यमुना शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग जैसा आपको फॉर्म बनाना होगा। रमा रमे रमा, हाँ, द्विवचन क्या बनता है? गंगा रमे। यमुने। गंगा यमुने। गंगा यमुने, नाइस। शिवश्च पार्वती च, क्या बनेगा? शिव पार्वतौ पार्वतौ पार्वत्यौ। पार्वत्यौ, शिव पार्वत्यौ ऐसा बनेगा। लक्ष्मी च लक्ष्मीश्च नारायणश्च, क्या बनेगा? लक्ष्मी नारायणौ। लक्ष्मी नारायण। वेरी गुड। अगला, घटश्च पटश्च अनयोः समाहारः। घटोपटम। क्या? घटपटम। मैं समाहार बोल रहा हूँ। तो नित्य क्लिबलिंग भवेत्। आपका आवाज नहीं आ रहा है जी, जोर से बोलिएगा। यदा समाहार द्वंद्व भवति तदा नित्य क्लिबलिंग एकवचनम भवति। हाँ, तो क्या बन जाएगा? घटपटम। घटपटम। जहां जहां समाहार करना है वहां नपुंसकत्वम एकवचनत्वम होना ही होना है। ओके, घटश्च पटश्च घटपटम, अहिश्च नकुलश्च अनयोः समाहारः वहीनकुलम। अहीनकुलम। वेरी गुड। बताओ इसको क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी, मुझे अगला समास पढ़ाना है, हम पीछे रह जाएंगे नहीं तो। सूर्य चंद्र चंद्रौ। सूर्य चंद्र सूर्य चंद्र सूर्यौ ऐसा बन सकता है। यदि चंद्रमस ऐसा शब्द यूज कर रहे हो तो वहां आपको क्या करना है? सूर्य चंद्रमस। जो बड़े अक्षर, बड़े स्वरों वाला है, ज्यादा स्वरों वाला, सॉरी बड़े नहीं, ज्यादा स्वर वाला यदि कोई पद है उसको बाद में रखते हैं, तो सूर्य चंद्रमसौ ऐसा बनता चंद्रमसौ। है। बालिकाः बालकाः, हाँ, बालिका बालको बालकाः न बालको। यहाँ यदि हम साहचर्य, हाँ, बालिकाः बालकाः च वृक्षाः लताः च। अभी यहाँ यदि नित्य साहचर्य है तो वह नपुंसकत्वम आ जाएगा, बालक बालिकम ऐसा बन सकता है। बालको लेकिन अभी यदि हमें इतरेतर बोलना है, अलग 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 बालिकाओं का अलग ग्रुप है, बालकों का अलग है, उनमें साहचर्य नहीं दिखाना,
तब जाकर के हम उसको इतरेतर भी कर सकते हैं, उस वैसी व्यवस्था है। ठीक है। वृक्षश्च लताश्च, वृक्षलते, वृक्षवते। वृक्षलतम, ऐसा समाहार हो सकता है, लेकिन इतरेतर किया तो बढ़िया रहेगा। पुष्पम पुष्पाणि च फलानि च अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। पुष्पाणि च फलानि च एतेषां समाहारः। फलपुष्पम। और पुष्पाणि च फलानि च, पुष्पफलम। पुष्पफलानि। पुष्पफलानि, पुष्पफलम। न मैं ये ऐसा बोल रहा हूँ, पुष्पाणि च फलानि च, यहाँ मैंने समाहार नहीं पूछा। समाहार कब बोलता हूँ? जब आपको वाक्य में एतेषां समाहारः, अनयोः समाहारः, एतयोः समाहारः ऐसा पद यदि सुनाई देवे, तब वहां समाहार करते समय आपको नपुंसकत्वम एकवचनत्व लाना है। ठीक है। चमसाः कंसाः च, कौन सा पद पहले आएगा, कौन सा पद बाद में आएगा? कंस चमसाः। कंस चमसाः ऐसा बनेगा। और मार्जनी च सुधाखंडश्च, मार्जनी सुधाखंडौ। हाँ, मार्जनी सुधाखंडौ ऐसा बन जाएगा। ठीक है। यस। अभी मैं ये रहने देता हूँ क्योंकि हमारी कक्षा आगे बढ़नी चाहिए। और वहां पे खंडम क्यों नहीं होगा? उनका समाहार ज्यादातर नहीं होता ना। अच्छा। आज हम अभी ये बहुव्रीहि क्यों दिख रहा है? ओके, मैंने जो स्लाइड भेजी वो यहाँ, एक मिनट। हाँ, अपडेटेड स्लाइड नहीं आई, जस्ट अ मिनट। हाँ, तब तक यदि आपको कुछ प्रश्न है तो कृपया पूछिएगा। किसी को कुछ प्रश्न है द्वंद्व के बारे में? यदि कुछ प्रश्न है द्वंद्व के बारे में, यदि किसी को द्वंद्व है तो पूछिए। हम अगला प्रकरण शुरू करने वाले हैं। नहीं तो सर ये जो अभ्यास आपने अभी करवा लिया या कुछ बाकी है ना, वो ग्रुप में डाल देंगे सर? हाँ जी, हाँ जी, बाकी स्लाइड्स में मैं ग्रुप में डाल दूं। जो हुआ है वो भी डाल दीजिए सर। जी, मैं लास्ट दिन आपको सब शेयर करूंगा। अभी फिलहाल किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हो आप। है किसी को कुछ प्रश्न है? हम्म, किसी को प्रश्न नहीं है? ओके, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी अव्ययी भाव का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। ये फिर से स्लाइड ये वाली शेयर हो गई ना। पीडीएफ कहाँ ओपन है? यहाँ है क्या? ओके, आर यू एबल टू सी? Yes, sir. यस। अव्ययी भाव दूसरा प्रकार हम पढ़ेंगे। जो इसकी विशेषताएं क्या है? इसका जो पूर्व पद है, तो बेसिकली द मेन डेफिनेशन इज पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव, जिसमें पहला वाला पद जो होता है उसके अर्थ की प्रधानता होती है। तो वैसे हम पहचान सकते हैं कि जिस जिस समास में पहले शब्द के अर्थ की प्रधानता है उसको हम अव्ययी भाव को बोलेंगे। उसमें कुछ सामान्य अंश हमें देखने हैं। पूर्व पदम सामान्यतः अव्ययम भवति। बेसिकली द फर्स्ट पद of this समास is always will be indeclinable word, अव्यय रहेगा। किंतु समस्त पदे एतत् सर्वं कुत्र द्रष्टव्यम? समस्त पदे। ये सारा आपको कहाँ पता चलेगा? समस्त पद में पता चलेगा। न
प्रादि इत्यादिषु अपि अव्ययं भवति, किंतु सह अव्ययी भावना। नए समास जब पढ़ेंगे, प्रादि समास जब पढ़ेंगे, वहां भी अव्यय आपको दिखेगा, लेकिन वो थोड़ा अलग है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, लेकिन समस्त पद में, कंपाउंड वर्ड में आपको वो आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, वहां ऐसे कुछ अव्यय आपको दिखने को मिलेंगे, यथा, इति, सह, प्र, परा वगैरह वगैरह अव्यय आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ जगहों पे अव्ययों के अलावा अभी पार शब्द, मध्य शब्द, कोई संख्यावाचक शब्द भी आ सकते हैं। सो दिस इज द एक्सेप्शन। ओके, समस्त पदम सर्वदा अव्ययम भवति, अतः अव्यय भावः इति तस्य नाम। जब अव्यय भाव समास आप प्रयास अभ्यास कर रहे हो, इसके दो पदों में समास होगा। पहला पद अव्यय पद रहेगा, दूसरा एक तो नाउन रहेगा, कोई ना कोई शब्द रहेगा। जब इन अव्यय प्लस नाउन एक साथ आएंगे, तब उस पद का फिर से वहां क्या बन जाएगा, समस्त पद होने के बाद वहां अव्यय बन जाएगा। इन द सेंस इट, यू कैन नॉट डिक्लाइन दैट पद, द फॉर्म विल बी सेम इन ऑल द केसेस। There are some exceptions that for that also, tritiya, panchami, etc. We'll see that. प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव, मेन डेफिनेशन याद रखने जैसी डेफिनेशन। पूर्व पदस्य अर्थस्य प्राधान्य अव्ययी भाव, उसका ही एक्सप्लेनेशन दिया है। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट और द फर्स्ट पद इज इंपॉर्टेंट इन अव्यय भाव। फॉर एग्जाम्पल, उपवृक्षम, अभी उपवृक्षम ये समस्त पद है। इस समस्त पद को आप देख रहे हैं, इसमें पहला वाला जो पद है वो है उप, और उप ये अव्यय है। जिस समास में पहला पद अव्यय होता है उसको हम बोलते हैं अव्ययी भाव। इतना एक सिंपल हिंट है अव्यय भाव समास समझने के लिए। ये हिंट है कि जिसका पहला पद समास होता है, अव्यय होता है, और दूसरा पद कोई ना कोई नाउन होता है, कुछ शब्द होता है, और समास हो जाने के बाद उसमें अव्ययत्व आ जाता है। यू कैन नॉट डिक्लाइन दैट उपवृक्षम, उपवृक्षे, उपवृक्षाणि, नहीं। सारी विभक्तियों में उपवृक्षम, 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 ऐसे ही रूप चलेंगे। ठीक है, आपको प्रथमा में यूज करना है, सेम रूप आप यूज करेंगे। द्वितीया में यूज करना है, तृतीया में यूज करना है, चतुर्थी में यूज करना है। यू हैव टू यूज उपवृक्षम ओनली। ओके, अर्थ क्या है उसमें, अन्य पद के मतलब समास व्यतिरिक्त पद का अर्थ वहां लाया जाता है। उपशब्द का अर्थ होता है समीप। तो बेसिकली व्हेनेवर यू वांट टू डू विग्रह ऑफ दैट अव्यय भाव समास, इट इज गोइंग टू बी अस्वपद विग्रह। मतलब उपवृक्षम, इसका विग्रह क्या बनेगा, वृक्षस्य समीपम, ऐसा बनेगा। Similarly, now we will find some examples. अच्छा, ये स्लाइड नहीं है ना, एक एक चेंज करना पड़ेगा। उसका मुख्य सूत्र यदि किसी को याद करना चाहते हो, यदि कोई याद करना चाहते हो ये सूत्र, तो एक्चुअली इन अर्थों में, इन 16 अर्थों में अव्यय भाव समास होता है। यदि ये अलग एक अकेला सूत्र आप मेमोराइज कर लेते हो तो आपका अव्यय भाव प्रकरण हो गया। सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद यथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। मतलब क्या कि विभक्ति अर्थादिषु, विभक्ति यहां से लेकर के अंतवचन तक, विभक्ति अर्थादिषु वर्तमानम अव्ययम, कोई ना कोई अव्यय, उन अर्थों में आने वाला कोई ना कोई अव्यय सुबंत पद के साथ उसका क्या बन जाएगा, समास बन जाएगा। विभक्ति अर्थ में यूज किया जाने वाला अव्यय है अधि। समीपार्थक अव्यय होता है उप। तो जहां जहां आपको समास में उप अव्यय दिखेगा तो वहां समीप अर्थ करना है। यदि आपको सु ऐसा अर्थ दिख रहा है, सु ऐसा अव्यय पद दिख रहा है समस्त पद में, तो उसका अर्थ हो सकता है समृद्धि। वैसे ही दूर इसका होता है वृद्धि, मतलब वृद्धि है अभाव, वृद्धि कहलाती है उसको, समृद्धि का अभाव। ठीक है, वैसा आप हर एक का समझ लीजिएगा। उनमें से जो जो इम्पोर्टेंट है इस 16 में से, उनका हम अभ्यास करेंगे अभी। ठीक है, इनके हर एक के उदाहरण मैंने रखे हैं। अध्यात्मम अथवा
उपकुलम, क्रम से रखे हैं उपगंगम, निर्जनम वगैरह वगैरह। इनका अभ्यास करिएगा आप बाद में। अभी कुछ मेन जो पॉइंट्स है अव्यय भाव के रिलेटेड वो मैं पहले बताता। अव्यय भाव समासे पूर्व पदस्य अर्थस्य किं भवति, प्रधानता भवति, पूर्व पदार्थस्य प्राधान्यम भवति। इदम एव मुख्य लक्षणम, दिस इज मेन लक्षणम ऑफ अव्यय भाव समास। मतलब क्या, पहले पद के अर्थ की प्रधानता। जैसे कि एक वाक्य बनाता हूं, सिंपल वाक्य, उसके बाद उसका हम क्या कर देंगे, समास कर देंगे। कृष्णस्य समीपे तिष्ठति, राधा कृष्णस्य समीपे तिष्ठति, अथवा यशोदा कृष्णस्य समीपे तिष्ठति। अभी यदि हमें इच्छा है कि मैं कृष्णस्य समीपे इस अर्थ में एक समस्त पद बना दूं, तो समास करते समय समीप अर्थक जो अव्यय होता है उस अव्यय को मैं यूज करूंगा। जैसे कि मैंने बताया लास्ट स्लाइड में, इस स्लाइड में आपको पता चलेगा समीप अर्थ में हम कौन सा अव्यय यूज करते हैं, उप अव्यय यूज करते हैं। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, कृष्ण शब्द के साथ उप जोड़ देंगे, बन जाएगा उपकृष्णम तिष्ठति। अव्यय हमेशा पहले आ जाएंगे, ठीक है। समीपार्थक जो अव्यय है वो पहले रख देंगे, उपकृष्णम कुत्र तिष्ठति, समीपे तिष्ठति। और वो समीप बताने के लिए उन्होंने उप ऐसा यूज किया। इतना क्लियर। अलग उदाहरण देता हूं, रामस्य पश्चात भरतः जातः, जातः नाम समुत्पन्नः, उत्पन्नो अभूत, उत्पन्न हुए। राम के बाद भरत जी उत्पन्न हुए, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। तो बेसिकली पश्चात इस अर्थ में, पश्चात अर्थ में कौन सा अव्यय यूज होता है, तो बेसिकली यू कैन रेफर दिस स्लाइड एंड पश्चात इस अर्थ में आपको मिलेगा अनु। तो क्या करेंगे आप, अनु अव्यय को उठाएंगे, राम शब्द के पहले रख देंगे, बन जाएगा अनुरामम। ये भी हमेशा नपुंसकलिंग में आता है, कौन सा, अव्यय भाव समास, ठीक है। तो बन जाएगा अनुरामम। तो वाक्य कैसे बनाएंगे, रामस्य पश्चात भरतः संजातः, वाक्य बन जाएगा अनुरामम भरतः संजातः। हाँ जी, अलापी नीचे। जी सर, अभी जिसके साथ ये अव्यय आएंगे और जो नाम रहेगा, जैसे पहले कृष्ण और अभी राम, तो उनकी द्वितीय विभक्ति कंपलसरी ओनली द्वितीय विभक्ति आएगी क्या? No, it is not द्वितीया, it is नपुंसकलिंग and it Sorry, becomes yes. अव्यय। हाँ, ये हाँ, अव्यय है, वो जी द्वितीय विभक्ति में नहीं है, वो प्रथमा में भी नहीं है, वो अव्यय है। जी, हम्म? यस, क्लियर है। ओके, ठीक है। अगला, अभी इसके जैसा हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं। एक वाक्य बताता हूं, विद्यालयस्य समीपे राष्ट्रध्वजः अस्ति। अभी विद्यालयस्य समीपे, समीप अर्थक मैंने अव्यय बताया उप, तो विद्यालय शब्द के साथ आप क्या कर देंगे, उपाव्यय जोड़ देंगे, वहां म जोड़ देंगे, उपविद्यालयम राष्ट्रध्वजः अस्ति। कहाँ राष्ट्रध्वज है, समीप है। समीप अर्थक जो अव्यय आपको मिल रहा है उस अव्यय को विद्यालय शब्द के पहले रख देंगे, बन जाएगा उपविद्यालयम। वैसे आप अलग अलग एग्जाम्पल आप पिकअप कर सकते हो, किसी के समीप बताना है तो यू कैन डायरेक्टली यूज दैट पर्टिकुलर वर्ड एंड देन यू विल से उपरामम, उपकृष्णम, उपगृहम, उपविद्यालयम वगैरह जो भी। अनदर एग्जाम्पल, नद्याम मीनाः सन्ति। नद्याम, अभी विभक्ति अर्थक में भी सप्तमी विभक्ति अर्थक पहला प्रत्यय होता है अधि, तो इसके ऊपर अभी जरा फोकस करिएगा। विभक्ति अर्थ में अधि, सप्तमी विभक्ति अर्थ में अधि इस अव्यय का यूज किया जाता है। तो बेसिकली इफ यू रिमेंबर दिस सूत्र, you will remember all the uses of that particular समीप is equal to उप वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मुझे ऐसा बोलना है, नद्याम मीनाः सन्ति, ऐसा यदि मुझे बोलना है, समास करना है, समास करते समय क्या करूंगा मैं, विभक्ति अर्थक अधि उपसर्गों को या अधि इस अव्यय को उठाऊंगा, नदी शब्द के साथ जोड़ दूंगा और वो बन जाएगा अधिनदी। उसमें रस्वत्व आ जाता है, नपुंसकत्वम आ जाता है और बन जाता है अधिनदी। मीनाः सन्ति मतलब नदी में क्या है, मीन है, मतलब फिशेस है। अभी आपको क्वेश्चंस, कृष्णस्य समीपे क्या बनेगा, उपकृष्णम। उपकृष्णम। क्यों बनता है? सिमिलरली
ग्रामस्य समीपे ऊपर ऐसा अर्थ में लिया। ग्राम उपग्रामम् उपग्रामम, वृक्षस्य समीपम उपवृक्षम उपवृक्षम् उपवृक्षम, विद्यालयस्य समीपे अथवा समीपम उपविद्यालयम् उपविद्यालय, गृहस्य समीपम। उपग्रहम् उपभ्यस्थम तो बेसिकली whenever you want to make simple Sanskrit, whenever you want to speak simple Sanskrit, regularly what you say, aham gramasya samipe vasami, I stay nearby that village particular one. Rather than saying that, you can even use avyay bhav samas and you can say aham upagramam vasami, aham upavृक्षम vasami, aham upavidyalayam vasami. Like that you can use. Okay, another slide. Second. सर एक शंका विचारू. जी. उपाध्यक्ष हा अव्ययी भाव नाही आहे, पण हा कुठला समास आहे? उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष उपराधियों में आएगा. अच्छा, प्राधि. धन्यवाद. उपाध्यक्षम अध्यक्षस्य समीपम इत्यपि शक्यते. उपाध्यक्षम यदि ऐसा पद आपको मिल रहा है तो वो अव्ययी भाव है. जी. दूसरा प्रकार मैंने बताना है. अनु, ये अव्यय है. अनु, ठीक है. अनु इसका अर्थ होता है पश्चात. पश्चात अर्थ आपको जब भी वाक्य में पश्चात यूज करना है, पश्चात अर्थ में आप हमेशा कौन सा पद जोड़ देंगे? अव्यय पद जोड़ देंगे, अनु. जैसे कि रामस्य पश्चात ऐसा बोलना है तो पश्चात छोड़ देंगे, पश्चात की जगह अनु लाएंगे और अनु शब्द को पहले रख देंगे. रामस्य पश्चात अनुरामम, सिंहस्य पश्चात अनुसिंहम. हाँ, अनुसिंहम, क्षम्यताम, ये नपुंसकलिंग बन जाएगा. रथस्य ओके, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गई. हाँ, लिखते समय रथस्य पश्चात अनुरथम. और योग्य अर्थ में भी अनु का प्रयोग होता है, जैसे कि रूपस्य योग्यम अनुयोग्यम अनुरूपम. ओके. तीसरा इंपॉर्टेंट, अधि. अधि मैंने जो विभक्ति अर्थ बताया, सप्तमी विभक्ति, जिसका अर्थ होता है तस्मीन या अधिकरण दिखाते समय अधि अव्यय का यूज किया जाता है. ठीक है, सप्तमी विभक्ति अर्थक अधि प्रत्यय का यूज किया जाता है. जैसे कि हरऊ, हरऊ इसका अर्थ होता है हरि में, है ना, हरि में. तो मुझे जब बोलना है मेरी हरि में प्रीति है, मैं हरि के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण, भगवान हरि के ऊपर मैं प्रेम करता हूँ, हरि में मेरी भक्ति है. सो रादर देन सेइंग अहम हरऊ विश्वसिमि, अहम हरऊ स्निह्यामि, rather than saying that, you can even use avyay bhav samasa by saying adhihari vishwasimi, hari adhihari प्रीति ही अस्ति, भक्ति ही अस्ति मम. ऐसा आप कुछ बना सकते हो. सिमिलरली राज्य, इसका हमें अव्यय भाव करना है. राज्य में इस अर्थ में कुछ वाक्य बनाना है. हम क्या बोलेंगे? तस्मिन् राज्ये जनाः वसन्ति, राज्य में लोग रहते हैं. तो हम क्या बोलेंगे? अधिराज्यम जना वसंती. हाँ, अधिराज्यम जनाः वसन्ति, राज्य में लोग रहते हैं, इसका भी अर्थ वही होगा. आत्मनि, आत्म विषयक. सर अधिहरिम क्यों नहीं है? हरि शब्द अकारांत नहीं है. अकारांत शब्द के, अकारांत शब्द में ही वहां क्या आएगा? म आएगा. इकारांत शब्द है, उकारांत शब्द है, वो रस्व बन जाएगा, उतना ही. उसमें म वगैरह नहीं लाएंगे. धन्यवाद जी. अध्यात्मम आत्म संबंधी इति अर्थः. वैसे ही नीर, ये एक अव्यय है. नीर अव्यय का यूज क्या होता है? अभाव दिखाने के लिए. तो बेसिकली व्हेनेवर यू फाइंड द अभाव शब्द, व्हेनेवर यू वांट टू यूज अभाव शब्द, यू कैन डायरेक्टली यूज नीर अव्यय. जनानाम अभावय, अभावः, लोगों का अभाव, ऐसा यदि बोलना चाहते हो तो आप क्या बोलेंगे? नीर अव्यय का यूज करेंगे अभाव अर्थ में, और उसके साथ जन शब्द जोड़ देंगे. जन ये शब्द अकारांत होने के कारण वहां म जोड़ देंगे. निर्जनम क्या बन जाएगा? जनानाम अभावः निर्जनम. सिमिलरली मशकानाम अभावः निर्मशकम. निर्मशकम. मक्षिकानाम अभावः निर्मक्षिकाम. निर्मक्षिकम. मक्षिका ये शब्द आकारांत है, उसमें रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य
इस सूत्र से रस्वत्व आ जाता है। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन सूत्र एक्सेट्रा बिकॉज इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। आई कुड नॉट फिनिश इवन अव्ययीभाव। मक्षिकम ऐसा आकारांत शब्द रस्व बन जाते हैं, निर्मक्षिकम ऐसा बन जाएगा। जीवस्य अभावः निर्जीवनम निर्जीवम निर्जीवम, ठीक है। यथा शब्द का बहुत बार यूज होता है। यथा शब्द का अर्थ होता है शक्तिम अनतिक्रम्य या अनतिक्रम्य, उल्लंघन न करते हुए, ऐसा यथा शब्द का अर्थ यहाँ लिया गया है। तो बेसिकली समयम अनतिक्रम्य मतलब समय का उल्लंघन न यथा करते समयम। हुए, यथा समयम अहम यथा समयम कक्षाम स्वीकरोमि, नाम किम, मैं जितना समय मुझे दिया गया है उतने समय में मैं समाप्त करूंगा। यथा समयम कक्षाम समापयामि, अथवा समयम अनतिक्रम्य अहम कक्षाम न स्वीकरोमि, वगैरह वगैरह, ऐसा वाक्य बना सकते हैं। सिमिलरली शक्तिम अनतिक्रम्य, यथा शक्तिम यथाशक्ति, ये अभी यहाँ शक्ति शब्द इकारांत है, वहां म नहीं रखेंगे, ठीक है। यथाशक्ति, आप यथाशक्ति ही ऐसा भी नहीं लिखेंगे, केवल रस्व इकारांत वहां रखेंगे, ठीक है। यथाशक्ति जैसा अधिहरि हमने बनाए। मति शब्द इकारांत है, वहां भी म नहीं जोड़ेंगे, क्या बनेगा? यथामति। हाँ, ये मराठी में हम बहुत, मराठी में हिंदी में बहुत बार ये यूज करते हैं, यथाशक्ति यथामति, मतलब मेरी जैसी शक्ति है, मेरी जैसी बुद्धि है, उसके अनुसार मैं एक्सप्लेन करूंगा। वैसे अर्थ में बहुत बार लोग बोलते हैं, भाषण का जब भाषण देने लोग खड़े रहते हैं वो बोलते हैं यथामति में आपके सामने मेरा विषय प्रतिपादन करूंगा, वगैरह। विधि, विधिम अनतिक्रम्य, यथाविधि। हाँ, रघुवंश आप पढ़ेंगे तो यथाविधि हुताग्नि नाम, वगैरह वगैरह, वहां श्लोक आते हैं, ठीक है। प्रति, ये भी बहुत बार यूज होता है। विप्सा मतलब बार बार ऐसा दिखाना है तो कौन सा प्रति शब्द का, प्रति अव्यय का यूज किया जाता है। जैसे दिनम दिनम प्रति, वहां क्या आएगा? दिनम दिनम, ऐसा यदि दिखाना है तो वहां प्रति अव्यय का यूज किया जाता है। प्रतिदिनम, यहाँ मैंने प्रति शब्द लिखा है मोर क्लैरिटी के लिए लिखा है, प्रति शब्द लिखने की जरूरत नहीं। दिनम दिनम, उसमें विप्सा दिख जाती है, वारंवारिता दिख जाती है। तो दिनम दिनम प्रतिदिनम। वृक्षम वृक्षम, वर्षम वर्षम, वर्गम वर्गम, हाँ, ये हो गए अव्यय भाव के मुख्य प्रकार। अभी कहाँ हमें अम यूज करना है, कहाँ हमें रस्व कर देना है, कहाँ फिर से अम, कुछ विशेष शब्दों के बारे में। तो बेसिकली इफ द वर्ड एंड्स विथ अ और आ, you have to add am प्रत्यय along with that. For example, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, कृष्ण शब्द आकारांत होने के कारण वहां अम जोड़ देंगे, उपकृष्णम बन जाएगा। ग्रामस्य समीपे उपग्रामम, शालायाः समीपे उपशालम, आकारांत शब्द है, उसमें अम जोड़ देंगे। उपविद्यालयम, विद्यालयस्य समीपम। उपकार्यालयम, कार्यालयस्य समीपे, समीपम। ये हो गया रस्व आकारांत। रस्व आकारांत शब्द है, सॉरी, रस्व आकारांत या आकारांत शब्द है, उसका यदि अव्ययी भाव समास कर रहे हो तो यू हैव टू पुट अम, लेट गो अ एंड आ। नाउ फोकस ऑन अदर स्वरज, अन्य स्वरांतः यदि शब्दाः सन्ति। फॉर एग्जांपल नदी, दीर्घ इकारांत शब्द है, वो क्या बन जाएगा? रस्व बन जाएगा बस। उपनदी, नद्याः समीपे उपनदी, उपनदी रस्व बन जाएगा। धेनु शब्द है, उसका क्या बन जाएगा? उकारांत शब्द है, रस्व बन जाएगा, उपधेनु। वधू शब्द है, वध्वाः समीपे, वधू के समीप, इस अर्थ में वो रस्व बन जाएगा। वैसे ही गौ शब्द है, उसको संप्रसारण हो जाता है, नौ शब्द उसको संप्रसारण हो जाता है, रस्व बन जाता है उपगु, मतलब उपनौ बन जाता है, उपनु, वगैरह वगैरह। नावः समीपे, गौः समीपे, वगैरह। और यदि कोई व्यंजनांत शब्द है उसमें विशेष नियम लागू होते हैं, जैसे कि राजन शब्द है, नकारांत शब्द है, वहां अम आ जाता है, बाहुल्य ने वहां अम आपको दिखाई देगा। सुरुद शब्द है, उसमें अम दिखाई देगा, उपसुरुधम। वनिक शब्द है, उसमें अम जोड़ना है। हिमवत शब्द है, हिमवतम बन जाएगा। शरद शब्द है, उपशरदम बन जाएगा। तो बेसिकली हियर अव्यय भाव समास आपको प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जांपल उपग्रामम क्या बनेगा?
जल्दी जल्दी। ग्रामस्य समीपम ग्रामस्य समीपम। अधिनदी, अधिनदी, नुद्दाम नद्याम। नुद्दाम हाँ, अधिनद्याम नद्याम ऐसा बन जाएगा। अधिनदी का अर्थ होता है नदी में। अधि शब्द का अर्थ होता है विभक्ति, सप्तमी विभक्ति यूज किया जाता है, अधि शब्द यूज किया जाता है सप्तमी विभक्ति अर्थ में। प्रत्येकम, एकम 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 एकम। एकम हाँ, एकम अनुमात्र, अनु शब्द का अर्थ होता है मातृ पश्चात मातुः पश्चात, मातु के, माता के बाद। अनुमातृ पितरम नमामि, ऐसा कर सकते हो। माता के बाद में पिता के पैर छूता हूँ। अनुमातृ अनुमातृ पितरम प्रणमामि, ऐसा बना सकते हो, वाक्य बना सकते हो। निर्विघ्नम, विघ्नस्य अभाव विघ्नस्य अभाव अथवा विघ्नानाम अभाव, बहुत सारे विघ्न एक साथ आ सकते हैं ना, तो उनका अभाव। यथामति, मतिम अनतिक्रम्य अनतिक्रम्य इच्छाम अनतिक्रम्य बन जाएगा यथेच्छम यथेच्छम। इच्छा शब्द आकारांत है, उसको हम ह्रस्व कर देंगे, हम कर देंगे। यथेच्छम, यथेच्छ मैंने भोजन किया, मतलब मेरी जितनी इच्छा थी उतना मैंने भोजन किया। सीतायाः पश्चात, अनुशीतम अनुसीतम। गौ शब्द होता है बेसिकली, उसका रूप चलाएंगे तो गाम गाम प्रति बन जाएगा, प्रति गु ऐसा बन जाएगा। आत्मनि अध्यात्मम, गिरे है समीपम, गिरी शब्द इकारांत शब्द है इसलिए वहां ह्रस्वत्व आ जाएगा बस, उपगिरी। भयस्य अभावम, निर्भयम। Yes, so today this much is sufficient. We'll do Purnamadah. Then if you have doubts, you can let me know. Okay, we'll do Purnamadah. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namah. हरि ओम।